What's your emotion? My emotion is embarrassment. I have gone through all the phases of a fuckboy. There are like 5 stages to कैंसर के विचार हैं। बेबी कुछ नहीं, 1-2 बार हो जाता है ये। ना वीरे ना। Welcome to Wildstone presents Lose Emotions, a concept crowd work show where emotions meet stand-up. चुनो अपना emotion, spin होगा wheel, and 3 comedians might just help you heal. Funniest stories. उसको मैं रात को मिलने गया, वो मिलते ही रोने लगा कि भाई मेरी बंदी मेरे से दूर जा रही है, वो मेरे से बात नहीं कर रही, वो किसी के साथ घूम रही है, वो घूम मेरे साथ रही थी। But I'ma cut the whole thing. Like it. Choose a wild stone to win some or maybe lose some. Are you ready to spin your emotion too? Funny? She talked one of the spirits कि वो बुरी वाली spirit क्या चाहती है. She like she wants to kill the mother. क्योंकि and then my sister and then me. Ladies and gentlemen, welcome on stage, Mr. Kaustubh Agarwal, Vidit Sharma, and Rajat Singh. Gulgaon, can we make a huge round of applause for all you guys for coming? Yes! बैठ जाओ। Okay, so my emotion is embarrassment. होगा। Okay, so recently मैंने Hinge download किया था and I was uninstall भी कर दिया बहुत जल्दी. So I went on one date. So I was talking to someone who would not usually be my type. So I was like, yeah, जो भी बोल रहा होगा सही बोल रहा होगा and he must be truthful, which I was being. And in 2 हफ्तों में I have gone through all the phases of a fuckboy. All the phases of a fuckboy. Yeah. क्या होता है? तो फक बॉय का बॉड मास। क्या होते हैं phases बताइए? So phases, okay, so there are like 5 stages. Okay. First one. कैंसर के विचार हैं। ये बीमारी छूने से ही फैलती है। Okay, so the first one is being love bombed. Okay, Love bombing. वो तो मैंने सोच लिया था Like mad love bombing. कि तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, तू तो सांस लेती कितनी औसम है। तुम्हारा ही नहीं। Actually, ऐसी ही बातें हो रही थी. And like second stage would be. बिल्कुल मैम ऐसे बता रही है 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ ना। अरे केबीसी में तो फोन ऑफ फ्रेंड आपके पास 1 मिनट है सवाल जवाब देने के लिए। Okay. हाँ मैम। So second is? Okay, I think there are 3 stages actually. Yeah. I'm sorry. वो मैं समझ गया था। Okay. क्योंकि 14 स्टेज तो लीविंग होता है ना। As a fuck, मतलब I don't know, as a fuckboy. Fuckboy? As a aspiring fuckboy. हाँ. Second stage is ma'am. I'll tell you the chuda thing also. Okay, wait, so first, okay, so second one we'll go with breadcrumbing and third was ghosting. So there are 3 stages. Okay? Yeah, very fair. Back तो आपने you figured it out by the way. Yeah. It's a decreasing graph of love bombing, right? ये ब्रैड जीपीटी। एक मिनट। सर आप मतलब पूछ रहे हो क्या? हाँ, आपको कौन सा वर्ड का मतलब समझ में नहीं आया? ब्रेड क्रम्बिंग बताओ। नहीं उनको फक बॉय नहीं समझ में आया। मैं यूके में भाई। ब्रेड क्रम्बिंग सर मतलब जो साइड के कटे होते हैं ना वो खा जाना। जो कौस्तुभ कभी नहीं छोड़ता। भाई वो भी पौष्टिक। कार्बोसोरस तो बहुत फनी है। सर ब्रेड क्रम्बिंग होता है वो क्या बोलते हैं यार उसको? अरे वो मिर्जा दाना देना। हाँ दाना देना। आओ थोड़ा प्यार करना। हाँ कमिटमेंट। सिम वाली फ्लेम पे। Okay. ठीक है, फिर क्या हुआ आपके Okay, so love bombing में मेरे से ऐसी बात हो रही है and we have been talking for like 3 days. Okay, and इसमें he's discussing चूड़ा, he's discussing शादी, he's discussing झांझर. Oh, the fuckboy package. समझ सकता हूँ। और आप भी कंट्रीब्यूट कर रहे थे कि हाँ सनसेट वेडिंग करेंगे। मेरे थोड़ा ही सिंदूर लगाना और ऐसे करना कि थोड़ा सा नाक पे गिरे वो शुभ होता है। और मेरी एंट्री पे रोकोगे ना। मेरी एंट्री पे रोकोगे। हाँ तो 3 days in we are discussing चूड़े का color and all that and then all of a sudden we stopped talking थोड़ा बहुत हाँ. and that is when breadcrumbing started. एकदम से he was very busy at work
and like हाँ क्या सवाल क्या हुआ है? मुझे एक चीज मुझे जानना है, जो आपने बोला था वो सरदार था, उसका लेना देना क्या है अभी? यहाँ भी तक कहाँ आएगा ये? he was very funny. I think that's why I was trusting him. Plus मेरे ना दिमाग में एक पहले ये तो आप बहुत रेसिस्ट हो, पहली बात तो आप बहुत रेसिस्ट हो सर। नहीं सच में सरदार देगा ओ ऐसा थोड़ी होता है। और वो ना मेरे को अपने फ्रेंड्स की सारी सीक्रेट्स बता देता था. लाइक ही वुड टेल मी सच रैंडम थिंग्स कि मेरे 4 दोस्त हैं, चड्डी बडीज है, 3 प्रोस्टिट्यूशन में जाते हैं. मतलब prostitution में जाते हैं, मतलब नौकरी है उनकी वो। बचपन के दोस्तों पे स्निच कर दिया है पूरा कि उन लोगों ने अपनी वर्जिनिटीज भी प्रोस्टिट्यूट से लूज किया वगैरह वगैरह. बट मैं अच्छा इंसान हूँ. हाँ वो बहन गाड़ी में बैठा रहता था, बाकी 3 जाते थे. एक्चुअली यही बोला था. हाइस्ट कर रहे कि थे ना। भाइयों मैं तुम्हारा वॉलेट संभाल लूंगा. वो फोन पे मोटिवेट कर रहा है, ना वीरे ना करदा जा, अब तू भाग. आपको लगता है उसने नहीं किया होगा क्योंकि उसके 3 फ्रेंड थे और वो उन्हीं के साथ घूमता था? And you don't think he would have done it? Yeah, I mean वो तो बोल रहा देखो था. 3 दिन बातें हुई थी ना. हाँ, exactly. फिर उसके बाद bread crumbing started. Like थोड़ा he would text me here and there. And like वो ना जब मेरे से थोड़ा बातें भी कर रहा था ना, तब भी वो fully love bomb कर देता था बीच में. कि सुनो मैं काम पे हूँ पर शादी. नहीं ये वाला कि मेरे तीनों दोस्त अंदर गए हैं लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे से ही बात कर रहा हूँ. आपको भनक लगी या उसको बिल्कुल ही उसने आपको घोस्ट किया, आपको तबका लगी? आवाज आई. Ghost किया था पकड़ लाई. फिर 1 हफ्ते बाद वापस भी आ गया. तो आई एम स्टिल कंफ्यूज कि ये है क्या या था क्या. तो आप हमसे पूछ रही हो, बता रही हो मतलब? मैं पूछ रही हूँ. अच्छा पूछ रही हो तो आप आगे बढ़ो ना. मैं एक बात बोलूं, आप हिंट्स दोबारा डाउनलोड करो. I think it's just a case of one of things यार. बट उसके बाद फिर भी लव बॉम्बिंग चल रही थी. तो वही तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा. हाँ मैं किसी को नहीं आया. ठीक है मैम, आप अपना ध्यान रखिए. आपने did you confront him? Yes, I said I don't want to beat a dead horse, but like था क्या ये? नहीं, हाँ. So what did he say? I'm sorry for being a disappointment. But But did he get better? उसके बाद वीरे गाल नहीं करनी. बाकी जो भी मर जाए उरे, है ना. मैम मेरे को लेकिन कुछ मेरे फॉलोअप क्वेश्चंस हैं. बाद में हेंच पे पूछियो. नहीं, आप actually. अपने फ्रेंड्स से वो कराना बैकग्राउंड वेरिफिकेशन. Yeah, actually, I really like Sardars. Like I've grown up. अब ना. एक ना मेरा inception था. ये पता है कैसे, जैसे घर में नहीं, मेरा नहीं. मुस्लिम फ्रेंड आता है वैसे करती है मेरी माँ. कि हम भी सेम. बहुत अरे कुछ ये सुनते हैं. बहुत ज्यादा. अरे हम भी सेवैयां खाते हैं भाई साहब. हम भी खाते हैं बिल्कुल. कोई सारे धर्म एक दिल का बुरा नहीं होता कोई. है ना, ये मत करो अब. हमारे यहाँ सोया भी हलाल आता है. और फिर हल्का सा बोल देंगे सलमान भाई वाला ग्लास ले आओ. सलमान भाई वाला ग्लास. मैम को खिलाने का गेम खिला सकते हैं. एक मिनट, ये स्टोरी वाइल्ड है या माइल्ड है? मैम नहीं खेलती, मैम की 3 दोस्त खेलती है, मैम गाड़ी में बैठती है. कोई हुआ है चीट चूट? भाई हुआ है. भाई के साथ बहुत कुछ हुआ है यार. भाई को एक बार दे दो यार. भाई बहुत बार हाथ खड़ा कर चुका है. तो ये स्टोरी मेरी ग्रेजुएशन के टाइम की बात की है. वाह. एक हम कॉलेज में ग्रुप में थे, कॉलेज खत्म हुआ, फिर 2-3 साल बाद एक लड़की से दोबारा कांटेक्ट शुरू हुआ मेरा इंस्टा पे. कॉलेज के ग्रुप में थी वो. पहले मिलना जुलना शुरू हुआ, उसके साथ घूमना फिरना भी बहुत शुरू हुआ उसके साथ. उसका बंदा था, उसके बंदे के साथ भी हम घूमते थे. उसका मतलब मैं, मेरा एक दोस्त आ रहा और वो अपने बंदे के साथ आती थी. उसकी वैसे नहीं तो 2 आईफोन पास में रहते अपने आप एयरड्रॉप NFC. हो जाता है. NFC नॉन फ्रेंडली कॉन्टैक्ट. फिर हाँ भाई. एक 3 साल पहले हमने एक ट्रिप बनाया अमृतसर का. वहां पे हमारा एक पंजाब में दोस्त रहता है. अब बाद में पता चला कि मैं, वो लड़की और जो बाकी लोग थे वो सब जोड़े में आए थे. वो रिलेशनशिप में थी पर वो मेरे साथ ही आई थी. तो अच्छा ओ. कि चल तू, मेरा बंदा आ नहीं सकता, उसकी जॉब है. ओ यार तेरे कितना एम्बैरसिंग होता होगा तुम्हारे लिए. सारे जितने दोस्त होंगे ये आपकी गर्लफ्रेंड. नहीं नहीं नहीं. लिटरली मैं तो सुरक्षा के लिए हूँ. और 5 बार बताना है, सारे दोस्तों को बताना है ये बात. पूरी ट्रिप ऐसा हो रहा है. फिर रात को ऐसा सीन हो कि सब अपने अपने रूम में चले गए, हम दोनों पे एक चाबी. क्या करें? ओ. अच्छा ये भी हम बताएं.
मैंने क्या करा, सोफा था साइड में, उस पर मैं सो गया। मैं भाई तब मेरे को पसंद नहीं थी इतनी, दोस्त की तरह मानता था। पर उसके बाद जब हम वापसी आ रहे थे तो उसकी इसकी बंदे से लड़ाई हो गई। मैं डोमिनोज पे तब खाना ऑर्डर करा था, हम ट्रेन से वापसी आ रहे थे, तो मैंने 2-3 चॉकोलावा केक ऑर्डर कर दिए। वो वहीं पिघल गई कि यार ये तो बंदा यहाँ तो कॉस्ट्यूम भी पिघल गया। बैंचो यू कुड हैव मी एट 2 ब्रदर, मतलब क्या कॉस्ट्यूम कर ले जा सकते हो आप। फिर हम रेगुलर मिलने लगे, हम अपने जो चोकोलावा पे मतलब वो फिर मिलने अरे लगे। इट्स द इंटेंशन ब्रदर, इट्स नॉट द प्राइस ऑफ इट। एक्चुअली पता है इसने भी सबसे वीकेस्ट मोमेंट पे वो करा है ना, जब लड़ाई होगी सबसे नीचे मोमेंट छोड़ रख दिया। फॉर रियल वो ट्रेन पर रोते हुए आई है मेरे साथ। उसके बाद फिर हम रेगुलर मिलने लगे। हम अपने दोस्तों से, जो दिल्ली के दोस्त हैं, उनसे छुपा के मिलने लगे कि हम दोनों अलग अलग घूमने जा रहे हैं, सब मिल रहे हैं। लेकिन आपको तो पसंद नहीं थी? बहुत पसंद आ गई धीरे धीरे। ऐसा कि चोकोलावा खाया उसने भाई? मैं छड़ा था ना। उसके बाद एक 15-20 दिन बाद मैं सुबह अपनी शॉप ओपन करा था सदर बाजार में। तो आपको ऐसे बोलना चाहिए था ना पहले। उसके बंदे का मेरे को फोन आया सुबह कि भाई तेरे से मिलना है, जरूरी बात करनी है। मेरी वहीं फट गई, मैं भाई आज पिटा मैं। तो आप उसके लिए चोकोलावा ले गए? नहीं, मैंने सोचा उसके घर के पास नहीं जाके मिलूंगा, उसको अपने एरिया में बुलाऊंगा। कल को पिट रहा हूँ तो 1 मिनट में लड़के आ जाएंगे, अपने भी बंदे आ जाएंगे। अपने भी बंदे आ जाएंगे। मुझे लगा 2-3 बंदे लेके आएगा। उसको मैं रात को मिलने गया, वो मिलते ही रोने लगा कि भाई मेरी बंदी मेरे से दूर जा रही है, वो मेरे से बात नहीं कर रही, वो किसी के साथ घूम रही है, वो घूम मेरे साथ रही थी। ये धुरंधर 3 भाई, ये बिल्कुल यही बैठा हुआ राकेश बेदी निकला हुआ है। ये भाई तेरे कंधों पे ऐसा क्या है? हमजा ही जस्सी है। एक मिनट, तेरे एक कंधे पे बंदी रो रही है, दूसरे कंधे पे उसी का बंदा रो रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल है यार? मेरी इतनी फटी मेरी कि उसको पता था कि मैं उसका अच्छा दोस्त हूँ, तो वो मुझे बता देगा। मैं उसको बता दूंगा कि भाई कोई और है उसकी जिंदगी मेरी में। गर्लफ्रेंड कितने है जस्सी? तुझे सोफे की याद नहीं आई जस्सी? तो उसके बाद मैंने लड़की को फोन करा, भाई तू अपने बंदे से ब्रेकअप कर या तू कुछ कर, ये ऐसे मेरे पास आकर हो रहा है, अच्छी बात नहीं है। उसने 1-2 महीने बाद उसके बाद ब्रेकअप कर लिया। 1-2 महीने बाद आपने खत में भेजा था क्या? नहीं, वो कह रही थी यार वो अभी सिक्योर नहीं है, उसकी जॉब चली गई। वो तो नौकरी में भी तो नोटिस पीरियड होता है यार, क्या हो गया भाई? 1-8 महीना लग गया। मतलब 6-7 से वो थे बंदा बंदी। तो मैंने बहुत गलत करा। मतलब ऐसा नहीं, पुराना रिश्ता तोड़ा तूने? बहुत पुराना रिश्ता तोड़ा है। और मुझे पता लग रहा था भैंचो 49 रुपीस में 89 49 into 2 हाँ 89 का हो गया। 89 का हो गया। फक बताओ, इकोनॉमी ब्रो। उसके मुझे पता लग रहा था इन्फ्लेशन कि इन वो- इनफिडेलिटी। हम तो फिर शुरू हो गई सिचुएशनशिप। वो 6-7 महीने चली और फिर मुझे दिखने लग गई वही हरकतें जो वो अपने बंदे के साथ कर रही थी, वो मेरे साथ शुरू हो गई। फिर तू उसके पास जाके रोया? बटन हार्क भाई। हाँ है ना, आप चौकोलावा उस लौटने के लिए लेके जा रहे हो। भाई पहले हर बार पे जोमेटो चेक कराओ पहले अपना। उस बंदे ने तो शहर छोड़ दिया, वो हैदराबाद शिफ्ट हो गया। और आपके साथ क्या, मतलब क्या हरकतें आपके साथ हुई जो जैसे आपको लगा घोष करना 3 दिन तक, वो मैं लव बॉम्बिंग, ब्रेड क्रम्बिंग, घोस्टिंग, यूनिवर्स बैलेंस करके आ रहा है भाई चोकोलावा ये नहीं खाते थे, इनके 3 दोस्त खाते थे। चलो ब्रदर, चूज अ नंबर। खिला। ओए भाई की स्टोरी वाइल्ड है कि माइल्ड है? वाइल्ड है। ओके ब्रो, चूज अ नंबर। 4। ओ भाई, हाँ भाई आपको जैकपॉट मिल गया है। 5100 रुपीज फ्रॉम वाइल्ड स्टोर। पर अब मेरे को खराब पता क्या लग रहा है, इसमें कितने चोकोलावा आ जाएंगे? भाई तेरे को कसम है, लेकिन इसमें से तू 2500 रुपए उसके बंदे को देगा। अरे कर लूंगा, पकड़ा अपना। और बेबी कुछ नहीं, 1-2 बार हो जाता है ये। अब अगर तूने मेरे बाल खींचे, आप हंस रहे हो, मुझे मैं रो रहा हूँ थोड़ा सा। Thank you so much। ओए भाई के लिए राउंड ऑफ अप्लॉज, साथ में वाइल्ड स्टोर के शानदार परफ्यूम भी भाई के लिए। यहाँ पे हॉरर स्टोरी है किसी में जेन्युइन? भाई के पास है। ओके आज मैम, स्टोरी बढ़िया। मैम ओवर देयर, मैम को माइक देना। हाँ 1 मिनट रुक जाओ, लाइट चेंज कर रहे हैं। आपको सच में बीच में आना है? नहीं
मैं तो कहीं भी मूत दूंगा। अगर मूतना पैंट में ही है तो कहीं भी- कर रहे मैम आप ओके हो ना? मैं मेरा सुसु निकला। ठीक है राम ये वाली लाइट्स भी थोड़ा टाइम लगता है। ओ यार ये थोड़ी कम कर दो, ऐसा लग रहा है रेड में आए हम। तो सिर्फ देखते हैं। पुलिस ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। ये हम सीधे तो गाड़ी में बैठने वाले हैं। वो बिल्कुल ठीक है हाँ मैं लग भी रहा हूँ मतलब हॉरर। ओए नन के बाद भाई ओए ऑपरेशन में नहीं हो गया था वो एकदम से। वो सारे खून मैंने किए हैं। ओ भाई लेना बेल। चलो चलो अब एनर्जी वापस आई। Hi guys, I'm Kanishka. I just want to say one thing. ये स्टोरी बहुत रियल है। ये मैंने 3 साल जी है अपने घर में। हमने एक नए घर में मूव किया था साकेत में, ठीक है। एंड इट वाज अ वेरी बिग हाउस 4 BHK, वेरी नाइस हाउस। तो हम लोग उसको देख के बहुत खुश हो गए थे। वी लाइक चलो लेट्स जस्ट मूव इन, ठीक है। हमने कुछ चेक बैक कुछ नहीं कराया। एंड आफ्टर लाइक अ मंथ और 2 मेरे डैड के बिहेवियर्स काफ़ी चेंज होने लगे। सडनली ही गॉट लाइक वेरी एग्रेसिव, ठीक है। एंड देन मैं और मेरी सिस्टर एक ही रूम में सोते थे साथ में सिंस लाइक एजेस। तो मेरे को ना फील होता था कि मेरे रूम के एक पर्टिकुलर कॉर्नर में कोई मुंह नीचे करके बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है। एंड मेरी सिस्टर को भी एग्जैक्टली लाइक दैट, आई एम नॉट किडिंग, एग्जैक्टली लाइक दैट। एंड एग्जैक्टली मत बोलो यार। समथिंग सिमिलर बोल लो। एग्जैक्टली ऐसे ओपन तू इन्होंने हल्का सा बोला दे जाऊ। एंड देन मेरी सिस्टर के साइड का जो कॉर्नर था, वी यूज टू लाइक फील कि वहाँ पे कोई पैर मतलब यू नो जोड़ के बैठा हुआ है एट नाइट। एंड हम कभी इस बारे में बात नहीं करते थे। एंड सडनली मैं और मेरी सिस्टर एक मंदिर गए। वी वर टॉकिंग टू पंडित जी अबाउट दिस कि हमें ना ऐसा कुछ फील होता है। वी सडनली सेट द सेम वर्ड्स कि कोई मुझे ऐसा फील होता है कि वहाँ खड़ा हुआ है उस तरीके से। हमने एक दूसरे को देखा कि तुझे भी होता है। शी लाइक हाँ मुझे भी होता है। एंड देन वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट घर जाके। आई टोल्ड माई मॉम, आई टोल्ड माई डैड, बट मेरे डैड ने सीरियस नहीं लिया क्योंकि ही वॉज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ दैट थिंग। एंड मतलब पापा के बिहेवियर में चेंज एज इन कैसे? उनके फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते थे। मेरे घर में बहुत लड़ाइयाँ होने लगी, फाइनेंशियल डिजास्टर्स होने लग गए। मेरे डैड का काम बंद हो गया। फाइनेंशियल मेरे डैड का काम बंद हो गया सडनली। वी वर डूइंग वेल ऑफ, ठीक है, अच्छा खासा कर रहे थे। देन सडनली उनका काम रुक गया। ये बहुत फैमिली डिस्प्यूट्स होने लगे। मेरे डैड घर छोड़ के चले गए किसी और घर में। देन वो मेरी सिस्टर से बहुत लड़ाई करते थे, बहुत ज़्यादा, कि लाइक एक दूसरे को पीट रहे हैं। बहुत बुरा हाल था। एंड उसके बाद क्या हुआ, देन हमने ना एक साइकिक को दिखाया, ठीक है। एंड शी टोल्ड अस समथिंग इतना डरावना कि मेरे अभी भी मेरे को बहुत गूज़बम्स आ रहे हैं। शी टोल्ड अस कि इस घर में 11 स्पिरिट्स हैं। इंडियन क्रिकेट टीम 1980। इंडियन क्रिकेट टीम 1980। वो बचा, मैं बुराड़ी सोच रहा था पहले। बुराड़ी सोच रहा था। मैं तो कोई सेंसिटिविटी गुड़गांव में तभी भाई आधे समय मैंने देख लिया। यहाँ पे कह रहे कि 11 भूत है, तुम लोग ताली मार रहे हो। नहीं आजा वो अपना बुराड़ी वाला पापा में बैट्समैन और बॉलर दोनों है। एक मिनट, आई एम सो सॉरी मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप यू डोंट माइंड द जोक्स। नो आई एम टोटली ओके विद इट। ओके थैंक यू मैम। एंड साइकिक ने बोला कि 11 स्पिरिट्स हैं। यस। सो डिड दे share more about what kind of spirits, the history or something? Yeah, तो जब वो घर बन रहा था ना, वो पहले किसी और का था, जिससे पुश्तैनी घर नहीं होते उस तरीके से था। तो वहाँ पे एक ओल्ड लेडी थी जिनके बेटे को एक घर बेचना था, बट शी डिडंट वांटेड टू सेल द हाउस। शी इज लाइक इट्स माय हाउस, आई विल नॉट लेट इट गो। तो उनकी डेथ हो गई। जब वुमेन की डेथ हो गई तो उनके बेटे ने वो घर बेच दिया बिल्डर को। एंड देन जब बिल्डर ने घर बनाना शुरू किया, जो आपको पता होगा 4 दीवारी की बात नहीं, पूजा होती है बिल्डिंग बनते वक्त, वो 5 बार वो दीवारें गिर चुकी थी जब वो पूजा हो रही थी, ठीक है। तो वो जो स्पिरिट थी उस वुमन की, वो इतनी डार्क हो चुकी थी कि उसने 11 स्पिरिट्स को अपने अंदर कैद कर लिया था।
Yeah. It was एमवे so एमवे horrible. चुड़ैल का एमवे भाई। किसने? It was अरे really एमवे में नहीं horrible. होता कि आप मेरी दो की मदद करो वो आगे दो MLM की स्कीम। भाई सबसे खराब ना मुझे लगता है जो मजदूर वो बना रहे होंगे ना उनको अब लगता होगा कि बैंड मैं बता रहा था चुप है भूत है रोज मुझे कहते हैं पुट्टी खराब करता है कह रहा देव ओके मैम आई हैव मोर क्वेश्चंस वी ओके विद क्वेश्चंस राइट मैम तो आपके फादर ओके ये सारा जब सीन हुआ और आपने प्रीस्ट के पास भी गए कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है एंड आप पता चला कि योर फादर वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ समवन एल्स तो वो फिर ठीक कैसे हुआ लाइक हाउ डिड यू गाइस गेट आउट ऑफ इट बिकॉज़ वी आर आल्सो स्कैर्ड अराउंड यू उनको ना नहीं आई एम टोटली फाइन अब मेरे आसपास कोई स्पिरिट नहीं है ऐसा कोई भूत नहीं अरे मैं भूत कहाँ से पागल हो गया। भूत पे किसी ने कभी प्रेजेंट में हम नहीं बोला। तो उनको जब हमने बताया मेरे डैड को कि पापा इस घर को छोड़ देते हैं क्योंकि रेंटेड है ऑलरेडी हम इससे चले जाते हैं हम इससे बच जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत लॉस हो चुका है ये ठीक है रिलेशनशिप का लॉस काफ़ी हो चुका है एंड फाइनेंशियली तो चल ही रहा है ठीक है तो ही इज़ लाइक आई एम नॉट गोइंग टू लीव दिस प्लेस एंड ही हैड नो रीजंस अबाउट इट एंड वो 3 Because साल they were not his reasons. yeah क्योंकि he was not able to listen and understand the seriousness of this situation तो वो नहीं मान रहे थे and one day ऐसा हुआ कि जब मेरे डैड को हमने काफ़ी बार बोला कि पापा ऐसा हो रहा है तो मेरे घर की ना लाइट चली गई एंड पूरी बिल्डिंग की लाइट आ रही है कॉलोनी की लाइट आ रही है सब हो रहा है बट मेरा घर पिन ड्रॉप लाइक डार्कनेस में है एंड मेरे घर में क्या कहते हैं कैमरास थे मेरे डैड को ना बहुत पागलपन है कैमरास का तो उन्होंने लिविंग रूम किचन सब जगह पे कैमरा लगा रखा था एंड स्विचेस के अंदर वो फोन से कंट्रोल होने वाले चीज़ें होती है कि लाइट ऑन और स्विच हो जाए ठीक है थर्मल वाले हाँ एग्जैक्टली तो उन्होंने क्या हुआ कि डोर के जैसे एंट्री डोर था वहाँ पे एक फॉयर लाइट थी वो ऑटोमेटिकली ब्लिंक करने लगी और फोन पे दिखा रहा है कि स्विच से ऑन ऑफ हो रही है and my dad is yelling in an empty room ki stop doing this stop it we cannot help you please leave us alone ठीक है एंड वो नहीं सुन रही थी मेरी मॉम ने चिल्लाना शुरू कर दिया उसके ऊपर कि तू जा यहाँ से एंड उसने वो लाइट बंद करके मेरी मॉम के ऊपर लाइट जलानी शुरू कर दी एंड वी लाइक Spotlight effect. एग्जैक्टली स्पॉटलाइट इफेक्ट हम सब चिल्लाने लग गए बहुत ज़्यादा मैं रो रही थी हमने हनुमान चालीसा चलाई भाई ये तो सही में सो नैनीताल में एक टेम्पल है वहाँ पे बाबा है उनको मेरी सिस्टर मानने लगी थी तो उसने मंदिर रूम में ना उनकी फोटो लगाई थी और उनका कंबल लेकर आई थी द नाइट हमने उसको वहाँ पे फिक्स किया है वॉल पे एंड उसकी 1-2 घंटे बाद हमें आवाज़ आती कुछ गिरने की उस रूम में से एंड वो सब कुछ गिरा हुआ था जो हम लेकर आए थे तो मेरी सिस्टर को काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन है उन बाबा से तो उसको ना ड्रीम आया एंड कि बाबा कह रहे हैं कि वो मैंने उसे बोला उस पीरियड को उस घर से जाने के लिए बट शी इज सो पावरफुल कि उसने मेरे को मेरी फोटोज गिरा दी एंड शी इज नॉट गोइंग एनीवेयर वो कहीं नहीं जा रही है आफ्टर लाइक मेरी अब अगर मैम के ऊपर लाइट जल गई मूत देंगे सब भाई। अबे अगर हम पे और लाइट जल गई ना मैं पता है अभी एक ही चीज पे अटका हुआ तब भी मैं कहा आपके पास YouTube प्रीमियम था ना जब आया क्योंकि हनुमान चालीसा चले और ऐड आ गई पहले तो गाजियाबाद में लिए नया फ्लैट अरे यार और ऐड भी आ रहा है आपको मुंह निकल गया मैं मीपो को बैंक्स ऐड आ जाता सिस्का स्विचेस का कि ऑन ऑफ होने में दिक्कत है। सॉरी मैम एक्चुअली ना हमारी बहुत ज्यादा पड़ गई इसलिए हम क्या कर रहे हैं मैं हम कह लाइट अब ऑफ रखी क्योंकि हमारा थोड़ा थोड़ा सुसु गिरा हुआ है फॉलो अप क्वेश्चंस तो उन गॉड जी ने स्पिरिट को गॉड जी F273 के पास रहते गॉड जी यार मैं ऐसे न्यूट्रल टर्म्स बोल रहा हूँ तो मेरे साथ रहो प्लीज तो मैम वो जो स्पिरिचुअल जी थे प्रभु सर थे ओए यहाँ ऐसे बता दो ये स्पिरिट बहुत पावरफुल हो चुकी है क्योंकि इसने स्पिरिट ही पी रखी है
So one of that spirit tried to rape me. ठीक है, आई एम नॉट किडिंग, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ यहाँ पे. एंड मेरी सिस्टर को मारने की ट्राई की थी, चोक करके, ठीक है, गला दबा के. एंड जब एक बार जब ये चीज़ें सबको पता लगी थी पूरी बिल्डिंग में कि ऐसा कुछ चल रहा है, तो मेरे घर की ना घंटी बजती है. तो एज आई टोल्ड यू, मेरे डैड बहुत अग्रेसिव हो गए थे. तो ही गोज लाइक कि किसने क्या ऑर्डर कर रहा है, कौन आया है. ही गॉट लाइक रियली मैड कि इतनी रात को घंटी किसने बजाई. चुड़ैल घर में थी, आप लोग जोमेटो ब्लिंकिट कर रहे थे. हम 3 साल सोए हैं उस घर में. अरे वो चूल्हा नहीं जलाने देती थी ना, वो क्या करती थी, जैसे चूल्हा जला भीड़ बंद कर दिया. मैं बता अरे यहाँ पे ये चौकोला वाले का आ रहा उठ के लिए. स्पिरिट को ब्रेड क्रम नहीं कर रहा है, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ. ओए फिर स्पिरिट को मनाली छोड़ के आए हैं. भाई कह रहा स्पिरिट मुझे गोस्ट कर रही है यार. Oh, that was fun. Sir was very घंटी बजाई है. मेरी सिस्टर कह रही है कि पापा हमने कुछ ऑर्डर नहीं किया है, आप गेट मत खोलो, बाहर कोई नहीं है. मेरे पापा ने नहीं सुना, उन्होंने गेट खोल दिया. गेट के बाद कोई नहीं खड़ा था. बस वहाँ पे ना कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी कि बहुत सारे लोग एक साथ बात कर रहे हैं, तो किसी की आवाज़ समझ नहीं आ रही है, वैसी आवाज़ें आ रही हैं. एंड लेटर जब हम सोए, मॉर्निंग में मेरी सिस्टर के फ़ोन में से वो सेम आवाज़ें आ रही थी. लाइक मैं अपनी बहन को हिला रही हूँ कि मानवी इसको बंद कर. मेरे को मेरी नींद खराब हो रही. शी लाइक मैं तो फ़ोन यूज़ कर ही नहीं रही, आई एम स्लीपिंग नेक्स्ट टू यू. एंड मैंने कहा तेरे फ़ोन में से ये आवाज़ आ रही. इट वाज लाइक उसके फ़ोन में नहीं था, उसके बेड की साइड में कोई खड़े होकर बातें कर रहा था. Oh fuck. 11 हो रहे हैं. 11. ओ यार गाइस, मैं ना आता हूँ. ओए मेरी फटी है, बस मुझे थोड़ा सा रोना आ रहा है. स्टोरी के बाद जाइए. क्या? अच्छा फॉग हो गई ना. वो सब वो हमारे मारने के लिए कर रहे हैं कि हम सारी फट जाए एकदम से. मत क्यों कर रहे हो भाई, तुम्हें पहिया घूमने लग जाए. पहिया घूमने लग जाए. हाँ, पीछे से व्हाइट साड़ी में औरत और आ जाए भाई, और वो रह बोले गया. आपका ऑर्डर आ चुका है. मैम आप ऐसे करते थे मैम, मतलब मैम आपने तो कभी छुपन छुपाई नहीं खेली होगी ना. नहीं खेल रहे थे, 11 लोग गाइन दे रहे थे. मैम सॉरी, हम कैन वी गो बैक टू सॉरी कि वो फोन था और फिर साइड में से आवाजें आ रही थी, वहां से कंटिन्यू करो आप आगे. जैसे मैं और मेरी बहन जग गए ना उस आवाज से, तो वो आवाजें आफ्टर लाइक 10 सेकेंड्स बंद हो गई. हमारी आंखें खुली हुई है, वो आवाजें हमें सुनाई दे रही, बट वहाँ कोई है नहीं. ठीक है, वो चीज़ है, वो 10 सेकेंड बाद बंद हो गई. अब हमें इतनी आदत हो चुकी थी उस 3 साल उस घर में रह के, भूतिया घर में, हमने उसको चाची बुलाना शुरू कर दिया था. ये वो यहाँ पे बोला है, कोई है नहीं, बहुत सारे हैं. मैम आपके पापा को फिर फाइनली कैसे ठीक हुआ, एंड हाउ डिड यू गाइस कन्विंस, लाइक हाउ डिड यू गाइस लीव दैट. एंड थर्ड क्वेश्चन, आप लोग कैसे श्योर हो कि आप लोग अब ठीक हो? एकदम से ऐसे कि मुझे आवाज आई है कुछ, हम बिल्कुल ठीक है, हम बिल्कुल ठीक हैं. ओके, सो मेरे डैड को आफ्टर कुछ टाइम बाद ना, 3 साल बाद, तो वो लैंडलॉर्ड ने खुद ही कह देते कि आप लोग चले जाओ. मेरे डैड ना ऑलरेडी उस घर को छोड़ के जा चुके थे. मतलब आप वो छोड़ के पहले गए थे, वापस आ गए थे, फिर दोबारा चले गए थे. इसलिए आई कैन नॉट लिव विद यू गाइज एनी मोर. तो हाँ, क्योंकि अब हमारी बनती नहीं है इतनी, तो वी लाइक हम अलग अलग रहते, बट वी गुड, अब ठीक है. तो जब हम उस घर से निकल रहे थे, तो मेरी मॉम ने बहुत घर ढूंढने ट्राई करे, बट उनको हमें जाने नहीं दे रही थी वो स्पिरिट ना. हमने लाइक 10 to 15 हाउसेस देखे ऑन रेंट, बट वो स्पिरिट हमें जाने देती ही नहीं थी. कैसे उसे रेंट एग्रीमेंट रोक दिया क्या? हाँ लिटरली यस, हमने डिपॉजिट दे दिया है एंड घर आए हैं खुश होके कि चलो फाइनली हम इस घर से जा रहे हैं. हमें कॉल आते घर आते कि सॉरी कैंसिल डील. ये 5 बार हो चुका था एंड वी वर लिटरली क्राइंग. आई हैव वीडियोस ऑन मी इफ यू वांट मी टू शो यू. No. एंड उसके बाद मेरे डैड कराओ.
भाई हमारी फटती है भाई। अरे 11 है, हल्का थोड़ी है भाई गेम। मेरे डैड ना नोएडा में किसी सोसाइटी में चले गए थे क्योंकि पूरी बिल्डिंग को खाली कर रहे थे लोग। जो 4th फ्लोर था और जिसका अपर ग्राउंड था वो उनको खुद का था। बीच के 2 फ्लोर्स रेंट पे थे जिसमें से एक में हम थे। तो हमारे नीचे वाले ऑलरेडी जा चुके थे। अब पापा चले गए थे उनके ही सोसाइटी में। तो हमने कहा यार हम निकल नहीं पा रहे हैं, 6 महीने एक्स्ट्रा हो चुका है। जब लैंडलॉर्ड ने बोला था निकलने के लिए, अब हम कहीं तो जाना है, निकलना पड़ेगा यहाँ से, कैन नॉट स्टे है एनी मोर। तो मेरे डैड ने किसी तरीके से करके उस सोसाइटी में एक और फ्लैट हमें दिलवाया। हम ओवरनाइट शिफ्ट कर गए। कितना सारा सामान तो उसी घर में छोड़ के चले गए। तो जो साइकिक थी, ठीक है, जो मेरी मॉम की फ्रेंड है, तो उन्होंने हम सबके अराउंड एक शील्ड प्रिपेयर करी कि आप जैसे इस घर से निकलोगे आपके अराउंड एक शील्ड आ जाएगी, बट आप दोबारा इस घर को मुड़ के भी नहीं देख सकते हो कभी भी। आप इस घर के अराउंड नहीं आ सकते हो। हम इवन घर में बात भी नहीं करते थे कि हमारा घर चेंज होने वाला है या कुछ भी डील है, क्योंकि वो डील्स खराब कर देती थी। क्योंकि उसका एंड गोल था वाज टू किल माई मॉम। She wanted to kill my mom. Then ये my कैसे sister, पता चला? साइकिक ने बताया था क्योंकि she talked one of the spirits कि वो बुरी वाली स्पिरिट क्या चाहती है। उस तरीके से उन्होंने बात की थी। तो she like कि she wants to kill the mother, क्योंकि and then my sister and then me, ठीक है। And I have 3 pets जिसमें से एक को डायबिटीज हो गई उसकी वजह से, ठीक है, और एक की थर्ड आई आ गई। ओ यार रुक जाओ। 3 पेट्स थे, एक को डायबिटीज हो गई। एक को डायबिटीज हो गई। फक मैम, क्या हाउ वो भूत उसको? हाँ, क्योंकि पेट्स में ऐसा होता है कि अगर कोई घर में कोई बुरी चीज है ना, वो अपने ऊपर ले लेते हैं कि हमारे मतलब जो लव्ड वंस है उनको बचाते हैं। डॉग्स ऐसे करते हैं बहुत बार। Fuck यार, भाई we don't deserve them. Yeah, I know. That's true, that's true. मेरी मॉम को ना एक बहुत गंदी इलनेस हो गई थी जिसका कोई डॉक्टर बता नहीं पा रहा था कि एक्चुअली हो क्या रहा है। उनके बहुत सारे टेस्ट हो गए थे, बट जैसे ही हम उस घर से निकले शील्ड बना के, शी वाज परफेक्टली फाइन। Oh, damn, Fuck, that's nice. amazing. Yeah, ताली so बजाओ। good. So good. Wow. Ma'am, I hope everyone in your family is healthy now. Yeah, we're totally fine now. That's Ma'am, crazy. Thank एक you. बार तालियां बजाएंगे Round of मैम के लिए, applause. That's yeah. very brave, yeah. वाह। And ma'am, we hope सब कुछ सही रहे and it takes guts to repeat all the It is. insane I'm trauma not which. kidding, I'm Round of applause, sure. genuinely Yeah. यार. And हमें भी शील्ड चाहिए। मैं साइकिल का नंबर दे दूंगी। नहीं कुछ आना जाए। मैं पता नहीं मैं एक लौता हूँ यहाँ पे, या यहाँ पे और भी ऐसे लोग हैं जिनके मन में एक बार, आप बोलना मत, ठीक है, आ रहा है ये पूछने का कि ये घर था कहाँ। साकेत तो ठीक है, मैं एड्रेस बताऊं क्या? हाँ, पर हमें आपको बोलना नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अरे क्या हुआ तेरे को? हाँ बस आ गया मैं। अरे नंबर खुलवा रहे, फिर चला जाइए। हाँ खुलवा दे। हाँ मैम, आप नंबर चूज करिए। 11 है। क्या मैम व्हाट नंबर डू यू चूज? मैम, एंड वी रियली होप यू विन द जैकपॉट। सोचो इनका -500 आ जाए। यार बता के चलाया करो लाइट। आपको तो आदत है। आपको तो आदत है। तेरे सिर्फ इनके यहाँ लाइट नहीं आ रही, बाकी सबके यहाँ आ रही हो। इनका चल रहा है आज भूतों का IPL है नंबर आज। 3। क्या? 3। 3 1 2 3। Okay, so you win 1,000 rupees or nothing. Wow. So you win 1,000 or nothing. You have to guess the dialogue. यहाँ पे एक इमेज आएगी, आपको गेस करना है उसका डायलॉग क्या आएगा। क्या होगा ये? इसका डायलॉग क्या है? मैंने तो आज तक ये फोटो नहीं देखी। You can take help. गैंग तो तुमसे ना हो पाएगा बेटा तुमसे ना पाएगा। ओके, एक मिनट साइलेंस। कैन यू हियर द ऑडियो? ये सब करने में। बट फिर भी हम मैम को 1,000 रुपए देना चाहते हैं। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मैम यार। ब्रदर, आप कौन हो इनके साथ? He is my boyfriend. He's your boyfriend? भाई ये उस घर में रहा है मेरे साथ। इसे हाँ? पूछो, ये रहा है उस घर में मेरे साथ। ओ बहनचोद भाई, Do you remember मैं- the lights? सच बता backyard की? भाई, आप देख रहे हो मर्द बहनचोद एक नाइट आउट के लिए।
भाई तेरे गट्स के लिए, ताकि और चाचियां तुझे मिले। वाइल्ड स्टोन की शानदार परफ्यूम। तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, तो आप सबको कैश प्राइजेस मिल ही रहे हैं। बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, जितने भी लोग हमारे को घर पे देख रहे हैं, अगर आप लूज इमोशंस कूपन कोड यूज करोगे वाइल्ड स्टोन की वेबसाइट पे, तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। हेलो मैम। हेलो। आप बताइए प्लीज। सो मैंने कॉलेज किया था देहरादून से। मैम माइक थोड़ा पास आपके पास का। ओके, सो मैंने कॉलेज किया था देहरादून से एंड आई शिफ्टेड टू दिस न्यू प्लेस आफ्टर कोविड। सो वहाँ पे जब मैं गई थी, सो लाइक शिफ्ट हुआ है, सामान वामान सेट करने के बाद आई स्टार्टेड कुकिंग डिनर एंड आफ्टर दैट जब मैंने हाथ धोए तो मेरे थंब पे कट था। सो आई थॉट मैंने खाना बनाया उसकी वजह से हो गया होगा। थोड़ी देर बाद पॉइंट ऑफ फिंगर पे कट था। यार एक मिनट, क्या बकचोदी है? सॉरी। सो उसके बाद फिर तीसरी फिंगर पे, चौथी पे, पांचवी पे एंड देन मेरे हथेली पे भी कट आ गया था। एंड देन आई टोल्ड माई एक्स अबाउट इट एंड देन मैं अपने लाइक जूनियर्स के वहाँ पे जाके रुक गई थी एंड देन आई रिटर्न टू माई प्लेस। एंड जब मैं वापस आई हूँ तो उस दिन 12 बजे के बाद से नॉक होने लगा था एंड जहाँ मैं रहती थी सामने वाला रूम खाली था, हॉलवे था और एक वो जो पुरानी लिफ्ट नहीं होती थी जो जाली लगती थी, तो वो जाली होती थी और मैं ताला लगा के फिर अपने रूम पे आती थी। सो मैंने लैंडलॉर्ड को कॉल किया, 12 बजे के बाद की बात है। वो भैया नीचे आए हैं, उनने खोलने का देखा तो ताला लगा हुआ है। मैंने कहा भैया बहुत देर से नॉक हो रहा है, तो ही सेड कि मे बी हवा की वजह से। आई वॉज लाइक फाइन, ठीक है कोई बात नहीं। एंड देन ऐसा ही कंटिन्यू रहा, मेरे को चोट लगती रही, मेरे को ब्रूजेस आते रहे। देन माई एक्स केम टू माई प्लेस एंड हमने लिटरली, हम लोग ऐसे यूट्यूब देख रहे हैं, नमकीन का पैकेट ऐसे रखा हुआ है, वो ऐसे 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 टक गिरा है एंड वी आर लाइक सो जाए, हाँ सो जाते हैं। उसके बाद लाइक मेरे हाथ में चोट लगी थी, आई हैड टू लाइक स्वेलिंग आ गई थी पूरी। देन उसको भी चोट लगी, एक बार मेरी वजह से लगी थी। एंड देन उसको ऐसा होता था अगर वो दूसरे रूम में हाँ, उसमें कोई लेना देना नहीं था, वो तो मैंने ही ब्रूज दिए थे। सो अगर वो दूसरे रूम में, उसे ऐसा लगता था कि मैं उसे आवाज़ दे रही हूँ एंड आई नेवर यूज्ड टू डू दैट एंड वो बुलाता रहेगा कि क्या बोल रही है। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं बोला, हमें भागने की आवाज़ आ रही है कॉरिडोर से। एंड लाइक अगर हम दारू पी रहे होते थे तो ऐसे आवाज़ आने लगती थी तो हम ऑफर भी कर देते थे। उस टाइम डेयरिंग होती थी। भाई साहब पैक बना के दे दिया। चुड़ैल ऑन द रॉक्स। सो आफ्टर अ वाइल जब चीज़ें एकदम एक्सटेंड पे हो गई तो आई टोल्ड माई मदर इज इनटू एस्ट्रोलॉजी एंड समथिंग लाइक दैट। सो माई मदर वाज लाइक कि मैं ध्यान लगा के बता दूंगा कि जो भी होता है जो भी है। सो मैं सोई हूँ यहाँ पे, लाइक मेरा एक्स है और मेरी मम्मा दिल्ली में है अभी। सो हम तीनों को एक सपना आया है। और जो सपने में आए थे मुझे, मतलब लाइक अंकल और एक बच्चा दिखा है, इनको अंकल दिखे हैं। अंकल लाइक साइड में एक कैफ़े होता था, उस कैफ़े में वो अंकल पहले से काम करते थे एंड मैं फर्स्ट ईयर से, मतलब लाइक जब मैं पहले वहाँ आई थी तो मैं उनके कैफ़े में खाती थी। सो आई न्यू द अंकल। मेरे एक्स नहीं जानता था उन्हें, तो मम्मा ने बता दिया था कि कौन है। मैंने एक्स को 3-4 फोटोज़ दिखाई थी, उनमें ग्रुप फोटोज़ में उसने आइडेंटिफाई किया था कि ये अंकल है। एंड मुझे बच्चा भी दिखा था, पर बच्चा भी मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाई थी कौन सी बच्ची है क्या है। बट फिर मम्मा ने मुझे लाइक हमने पंडित को भी बताया, देन पंडित ने कंफर्म किया कि कुछ है एंड मुझे धागा बांधा गया था आफ्टर पूजा। एंड देन आई लेफ्ट दैट प्लेस एंड इट वाज लाइक ही वाज एंग्री विद हिज सन। रेफरी कौन है यहाँ पे? येलो कार्ड दे दिया इसको। तो यार एक तो सुना रही है यार, BSNL चौक का। हाँ मैम ठीक है, आप ठीक हो ना? हाँ, आई वाज फाइन। मतलब लाइक स्टार्टिंग में चोटें लगी हुई हैं बहुत सारी। ओह माय गॉड। तो अंकल जी, ये आप अंकल जी को जानते थे, मतलब वही स्पिरिट है ऑफ कोर्स। तो आपको why was he doing it? He was angry with his son because when he died, after that he didn't took care of his wife and she also died in COVID. यार ये तो बहुत ही इविल स्पिरिट है। मेरे पास एक भाई, तेरे साथ सही में हुआ है ऐसे? मेरे पापा के साथ हुआ है। ओह माय गॉड। हाँ, और ये तो बहुत ही इविल स्पिरिट था मेरे पापा के साथ। तो आप लोग को बहुत फनी लगेगा लेकिन ये सच है। पापा बैठे हैं क्या अभी? नहीं, अभी नहीं बैठे। नहीं, पापा स्टार्टिंग में आए थे। तो ये पापा ना नया उन्होंने काम करना शुरू करा था। पापा जयपुर गए थे, ठीक है, और वो रहते थे, वो 1 आवर के टाइप के स्टूडियोज होते हैं ना, वहां पे रहते थे। और ऐसा था कि एक ही विंडो थी, बट जो सोल की थी वो पापा के पास ही थी और किसी के पास चाबी नहीं थी। सो ओनली पापा कुड एंटर द हाउस, दैट्स इट। और ये कंफर्म है, ठीक है।
पापा काम करने जाते थे और बैचलर पैड है तो वही एक जगह भी सुट्टा रखा हुआ है, कपड़े फैले हुए हैं, बर्तन गंदे हैं, बेडशीट वो रखी है। और जब पापा वापस आते थे पूरा का पूरा घर साफ होता था। आप मम्मी जी को चुड़ैल कह रहे हो? अरे पापा शादीशुदा नहीं थे यार तब। सॉरी। तो बेडशीट बनी हुई है, बर्तन एकदम साफ हो गए हैं, भूत मैडम है ना। अर्बन चुड़ैल। Fuck यार। नहीं, और ये सच में ऐसा हुआ है। पापा ने 3-4 बार ऐसे गार्ड साहब को, तो ऐसे पापा ने इग्नोर करा। पापा बोला गार्ड वार्ड करवा देता होगा, उसके बाद चाबी होगी। तो पापा ऐसे कई बार जाते थे, 100 रुपए दे देते थे। तो 1-2 महीने के बाद गार्ड ने एक्चुअली बोला कि आप इतने दिलदार हाँ क्यों कर रहे हो? कह रहे नहीं तुम घर साफ करवा देते हो और सब कुछ। तो बंदा कह रहा है ऐसा तो कुछ भी नहीं मैंने। कहते हाँ आपसे तो शराब चुराता था सर। तो ये हुआ, फिर पापा ने लैंडलॉर्ड को फोन करके बोला कि आपने चाबी किसी को दे रखी है वो वगैरह वगैरह, या आपने मेरे पीछे से कोई मेड लगवाई हुई है कि इस रेंट में मेड भी इंक्लूडेड है ये वो वगैरह वगैरह। तो कह रहा है ऐसा कोई नहीं है, सिर्फ एक ही चाबी है और वो सिर्फ तुम्हारे पास है। और फिर जेन्युइनली फिर बाद में जाके तब पता चला कि कौन हो सकता है, क्या हो रहा है ये वो वगैरह वगैरह। तो जब वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही थी तो एक लौता वही सस्पिशियस है कि वहां पे जो वर्कर्स थे, जो लेबर होती है, उसमें there was this one woman who actually fell from that particular floor. मरने के बाद भी पेट्रियार्की से हार रही है वो। मैम की स्टोरी, एक मिनट, मैम की स्टोरी वाइल्ड है कि माइल्ड है? वाइल्ड है। मैम को भी गेम खिला है? यस, है ना? मैम आप नंबर चूज करोगे? 1 ओह हाँ, क्योंकि सब यहाँ पे एक दूसरे का बुरा क्यों चाहते हैं? मैम हम बहुत देर से चाह रहे हैं हॉरर में कोई जैकपॉट जीते, तो आप नहीं जीते हो। आप 1000 और nothing। आप 1000 और नथिंग जीते हो और आपको भी डायलॉग गेस करना है। ठीक है, आप डायलॉग गेस कर लोगे ना? ओके। गेम पकड़ लिए तो तेज है। ठीक है, ओके, ठीक है। डायलॉग दिखा दो मैम को। यार उसी लाइट में नहीं हो सकता क्या राम? ओके। ठीक है, मैम को डायलॉग। यस, वो 3 दोस्त। यस मैम, क्या है इसका डायलॉग? ये कोई खाना है? मतलब आप डायलॉग का बता रहे हो या मतलब हम लोग तो देखो सिर्फ देखते हैं। हाँ ठीक है मैम, इज दैट योर फाइनल डायलॉग? Yeah. ओके, कैन वी प्ले द ऑडियो? Yes, my upbringing is Thank you so much, ladies and gentlemen. That's the end of the show. Thank you so much for coming and joining us. Can we have a huge round of applause for Mr. Rajat for joining us, yes? And also, ladies and gentlemen, the second season of Akal Ki Ghode is out now on YouTube, so please go ahead and watch it. देख लेना, Thank प्लीज देख लेना।